آج جو ہمارا سبق ہے یہ سبق نمبر تجویدی یسن القرآن میں سے 37 الف مقصورہ کا قاعدہ ہے۔ 38 وہ کلمات جن میں الف نہیں پڑھا جاتا، یہ دوسرا قاعدہ ہے آج کا ہمارا۔ اور قاعدہ نمبر 39 یعنی 39 سین اور صاد کو پڑھنے کا قاعدہ ہے۔ یہ تین قاعدے آپ کی خدمت میں آج بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، عزیز طلباء اور طالبات، آن لائن تجویدی یسن القرآن کا درس کا آغاز دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں وقف اور ابتدا کی دوسری صورت اور اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی تھی۔ آج جو ہمارا سبق ہے یہ سبق نمبر تجویدی یسن القرآن میں سے 37 الف مقصورہ کا قاعدہ ہے۔ 38 وہ کلمات جن میں الف نہیں پڑھا جاتا، یہ دوسرا قاعدہ ہے آج کا ہمارا۔ اور قاعدہ نمبر 39 یعنی 39 سین اور صاد کو پڑھنے کا قاعدہ ہے۔ یہ تین قاعدے آپ کی خدمت میں آج بیان کیے جائیں گے۔ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ دارالعلوم جدہ کی جانب سے یہ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے آؤ تجوید سیکھیں۔ تو آئیے معزز سامعین کرام، پہلے میں آپ حضرات کے سامنے الف مقصورہ کا جو قاعدہ ہے آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کروں۔ الف مقصورہ کا قاعدہ قرآن شریف میں بعض جگہ وہ یا لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ اگر وہ یا سے پہلے کھڑا زبر ہو تو وہ یا کی آواز نہیں آتی، بلکہ کھڑے زبر والے حرف کو مد اصلی کے برابر دراز کر کے پڑھتے ہیں، جیسے طغى۔ پھر ایک مرتبہ قاعدے کو سن لیجئے۔ الف مقصورہ، قرآن شریف میں بعض جگہ وہ یا لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ اگر وہ یا سے پہلے کھڑا زبر ہو تو وہ یا کی آواز نہیں آتی، بلکہ کھڑے زبر والے حرف کو مد اصلی کے برابر دراز کر کے پڑھتے ہیں، جیسے طغى۔ تو عزیز طلبہ، معزز سامعین اکرام، آئیے الف مقصورہ کسے کہتے ہیں۔ الف مقصورہ کی مثال میں آپ حضرات کے سامنے لکھتے چلوں۔ زکاتن، زکاتن، صلاتن، موسیٰ، عیسیٰ۔ الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو کاف آیا ہے، یہ کاف کے اوپر جو یہ کھڑا زبر ہے اسے کہتے ہیں الف مقصورہ، اسے کہتے ہیں الف مقصورہ۔ ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں بعض جگہ وہ یا لکھے جاتے ہیں، زکاتن میں وہ لکھا ہوا ہے، زکاتن میں وہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ میں یا لکھا ہوا ہے۔ بعض جگہ قرآن شریف میں بعض جگہ وہ لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ یہاں پر آپ زکاتن میں دیکھیں، ہم یہاں پر واو کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ زکاتن، واو سے پہلے کھڑا زبر آ گیا تو ہم کھڑے زبر کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں الف مقصورہ۔ الف مقصورہ، زکاتن، ہم یہاں پر زکاتن میں واو کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر واو کی آواز بھی نہیں آ رہی بلکہ کھڑے زبر کی آواز آ رہی ہے، الف مقصورہ۔ زکاتن، صلاتن، صلاتن میں بھی آپ دیکھیں ہم واو سے پہلے کھڑا زبر آ گیا، یہ الف مقصورہ ہے، واو کی آواز نہیں آ رہی، صلاتن۔ اسی طریقے سے بعض جگہ قرآن شریف میں وہ یا لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، وہ یا سے پہلے کھڑا زبر ہو تو یا کی آواز نہیں آئے گی۔ موسیٰ میں دیکھیں آپ، موسیٰ، یا سے پہلے کھڑا زبر ہے، اسے الف مقصورہ کہتے ہیں، تو یا کی آواز نہیں آتی، کھڑے زبر کی آواز آئے گی، موسیٰ، دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، موسیٰ۔ اسی طریقے سے عیسیٰ، عیسیٰ میں یا ساکن، یا سے پہلے کھڑا زبر ہے تو یہاں پر یا کی آواز نہیں آئے گی، کھڑے زبر کی آئے گی، الف مقصورہ، عیسیٰ۔ تو الف مقصورہ کا قاعدہ بالکل آسان ہے
तो इसको खड़े जबर को क्या है, मद्दे असली के बराबर, यानी हरफ मद जैसे हैं वो अलिफ या वो साकिन से पहले पेश या साकिन से पहले पेश जेर अलिफ से पहले जबर हो तो उसको जितना खींचते हैं इसे भी उतना खींचेंगे, यानी 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। तो कायदा क्या है, कुरान शरीफ में बाज़ जगह वो या लिखे जाते हैं मगर पढ़े नहीं जाते। अगर वो या से पहले खड़ा जबर हो तो वो या की आवाज नहीं आती, बल्कि खड़े जबर वाले हर्फ को मद्दे असली के बराबर दराज करके पढ़ते हैं। जैसे ज़कातुन, ज़कातुन में खड़ा जबर को पढ़ रहे हैं, हम वो को नहीं पढ़ रहे, लिखे जाते हैं। अब किसी के बच्चे के जहन में या सुनने वाले सामीन के जहन में ये बात आई होगी, मुसाब जब वो को और या को नहीं पढ़ते तो फिर क्यों लिख रहे हैं इसे। तो हाज़रीन इकराम और अजीज तलबा और तालिबात, इसका जवाब ये है, जैसा कि हमने तजवीदी यस्सनल कुरान में जब हमारा पहला वीडियो था उसमें आपको ये बतलाया गया था कि कुरान मजीद का जो रस्मुल ख़त है, कुरान मजीद का जो रस्मुल ख़त है वो कुरान मजीद के साथ, कुरान के अल्फाज के साथ ख़ास है, खासुल खास है। यानी कुरान मजीद का रस्मुल ख़त ये है कि ज़कातुन यहाँ वो के साथ लिखते हैं, ये कुरान मजीद का रस्मुल ख़त खास है। इसको हम ज़कातुन इस तरह वो के साथ लिखेंगे मगर पढ़ेंगे नहीं। इसी तरीके से मूसा या के साथ कुरान मजीद का रस्मुल ख़त है, इसी तरह हम या को लिखेंगे मगर पढ़ेंगे नहीं। किसी के जहन में ये बात आई होगी तो मैं इसका जवाब अर्ज कर दिया। तो यहाँ पर हम ज़कातुन, सलातुन, मूसा, ईसा, ज़कातुन में वो को नहीं पढ़ रहे, वो से पहले खड़ा जबर है, खड़े जबर खींच के पढ़ रहे हैं। सलातुन में वो को नहीं पढ़ रहे, वो से पहले खड़ा जबर है, अलिफ मकसूरा है, खींच कर पढ़ रहे हैं। मूसा या से पहले खड़ा जबर है, खींच कर पढ़ रहे हैं, या को नहीं पढ़ रहे। ईसा या को नहीं पढ़ रहे, खड़े जबर को खींच कर पढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल आसान कायदा है। और एक बात इसमें यह बतलाई जा रही है, अगर या से पहले जबर हो तो उसको बाद के कलमे से मिलाकर पढ़ें तो या नहीं पढ़ा जाएगा। और कि अलिफ मकसूरा ही में एक कायदा है कि अगर या से पहले जबर हो तो उसको बाद के कलमे से मिलाकर पढ़ें तो या नहीं पढ़ा जाएगा। अगर या पर वक्फ पढ़ें तो खड़े जबर को या पर वक्फ करें तो जबर को खड़े जबर से बदलकर मद्दे हुक्मी के साथ पढ़ेंगे। मैं इसकी मिसाल आप हज़रात के सामने लिखता चलूं। वला यंसल्लज़ी, वला यंसा अल्लज़ी। अब आप देखें अजीज तलबा, हमने क्या क़ायदा बतलाया था आपको, अलिफ मकसूरा के बाद में ये क़ायदा बतलाया था कि अगर या से पहले ज़बर हो, वला यंसल्लज़ी, या से पहले यहाँ पर ज़बर आया है, वला यंसा ज़बर आया है, अगर या से पहले ज़बर हो उसको बाद के कलिमे से मिलाकर पढ़ें। यहाँ पर आयत है, आयत के ऊपर लाम अलिफ है, पिछले बतलाया गया था कि आयत के ऊपर लाम अलिफ है तो आपको इख्तियार है कि आप फसलन भी पढ़ सकते हैं, वक्फन भी पढ़ सकते हैं। अगर वसलन पढ़ें तो बेहतर होगा, लेकिन अगर वक्फन पढ़ेंगे तो फिर उसकी अलग शक्ल होगी। तो वला यंसल्लज़ी में आप देखें यहाँ पर वला यंसा को मिलाकर पढ़ रहे हैं, वला यंसल्लज़ी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम या को नहीं पढ़ रहे हैं। अगर या से पहले जबर हो तो यहाँ पर जबर आ गया, या से पहले यहाँ पर ये जबर आ गया। अगर जबर हो तो मिलाकर पढ़ने की सूरत में, बाद के कलमे से मिलाने की सूरत में हम या को नहीं पढ़ रहे, सीन को लाम से मिला रहे हैं, वला यंसल्लज़ी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये क़ायदा बतला रहे हैं, अगर या पर वक्फ करें, आयत है यंसा अल्लज़ी के दरमियान आयत है, अगर यहाँ पर अगर वक्फ करें, वला यंसा पे वक्फ करें तो जबर को, ये वला यंसा पे जो जबर है वो जबर को आप खड़े जबर से तब्दील कर देंगे, बदल देंगे और मद्दे हुक्मी के साथ खड़ा जबर आ जाएगा तो मद्दे हुक्मी होगा और उसको खींच कर पढ़ेंगे। वला यंसा अल्लज़ी, ये वसलन है, ये वसलन है, ये वक्फन है, ये वक्फन है, ये वसलन है। वसलन वला यंसल्लज़ी, सीन को लाम से मिला रहे हैं और ये या नहीं पढ़ रहे हैं। वक्फन में क्या कर रहे हैं हम, वला यंसा आयत है, आयत पे रुक गए आप, तो ये जबर को जो है सो हम खड़े जबर से तब्दील कर रहे हैं। खड़े जबर को खड़े जबर से तब्दील करेंगे तो ये क्या ऑटोमेटिक इसको खींचना पड़ेगा, आप जो मद्दे हुक्मी हो जाएगा। वला यंसा, ये अलिफ को जो है हम जबर दे देंगे, अल्लज़ी, ये बात बतला रहे हैं। इसी तरीके से सूरतुल आला जो पारा नंबर 30 है,
अब्बा पारा है, उसमें हम पढ़ते हैं सूरतुल आला में सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी, हम मिलाकर पढ़ते हैं सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, ये आयत है। तो हम जब इसको मिलाकर पढ़ते हैं तो जो लाम के ऊपर जबर है तो हम सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी मिलाकर पढ़ रहे हैं। अगर हम आयत पर रुक जाएं, वहां पर भी लाम अलिफ है, सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला हम पढ़ते हैं, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा हम पढ़ते हैं। आयत पर वक्फ करने के बाद अलिफ को जबर देते हैं और लाम को जो है सो हम जबर को खड़े जबर में तब्दील कर देते हैं। वहां पर खड़ा जबर लिखा हुआ नहीं है, हम रुकने की सूरत में खड़े जबर को दे रहे हैं, वो यहाँ पर कायदा बन रहा है। तो हम इसको कैसा पढ़ेंगे, वला यंसल्लज़ी, अगर रुके तो ये जबर को खड़े जबर से पढ़ देंगे वला यंसा अल्लज़ी। तो अजीज तलबा और तालिबात, ये अलिफ मकसूरा का ख़ैज़ा मैंने आप हजरात के सामने रखा, इसको समझ जाइए अच्छी तरीके से। बिल्कुल आसान तरीका है कि खड़ा जबर अगर वो या से वो या लिखे जाते हैं कुरान शरीफ में, पढ़े नहीं जाते, वो या से पहले खड़ा जबर आओ तो खड़ा जबर आए तो वो या नहीं पढ़ेंगे बल्कि खड़े जबर की आवाज आएगी। आज हमारा जो दूसरा कायदा है वो दूसरा कायदा है अलिफ मकसूरा का कायदा। ये दूसरा कायदा है वो कलिमात जिनमें अलिफ नहीं पढ़ा जाता, वो कलिमात जिनमें अलिफ नहीं पढ़ा जाता, ये हमारा दूसरा आज का कायदा है इस वीडियो का। पहले आप कायदे को सुन लीजिए। वो कलिमा जिनमें अलिफ नहीं पढ़ा जाता, कुरान शरीफ में बाज़ जगह रसूल खत में अलिफ लिखा हुआ होता है मगर उस अलिफ को मत करके नहीं पढ़ेंगे, अगर वक्फ करेंगे तो अलिफ पढ़ा जाएगा। और अलिफ बल्कि अलिफ पर जीरो और काट कूट के अलामत पाई जाती है। अजीज तलबा आप देखें कुरान मजीद में ये अलामत, ये जीरो की अलामत अलिफ के ऊपर आती है और इसी तरीके से ये काट कूट की अलामत जिसे हम कहते हैं ये नहीं पढ़ना, ये अलामत आपको कुरान मजीद में पाए जाते हैं। कदीम जो कुरान मजीद थे उसमें ये अलामत पाई जाती थी और आप जो जदीद कुरान शरीफ तबात होकर आ रहे हैं उसमें ये अलामत लिखी जाती है। तो अलिफ के ऊपर या जीरो की अलामत आए या फिर ये अलामत आए, काट कूट की अलामत आए, तो फिर अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। वही क़ायदा मैं आपको सुना रहा हूँ। कुरान शरीफ में बाज़ जगह रसूल खत में अलिफ लिखा हुआ होता है मगर उस अलिफ को मत करके नहीं पढ़ेंगे, अगर वक्फ करें तो अलिफ पढ़ा जाएगा। और अलिफ पर जीरो ओ एक्स यानी काट कूट की अलामत पाई जाती है। वो तमाम कलिमात जिनमें अलिफ पढ़ा नहीं जाता यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इन कलिमात को कई बार पढ़ाएं ताकि वह ज़हन नशीन हो जाए। और कुरान मजीद में किसी जगह तबाअत में ये दो अलामत अगर छूट भी जाए तो कुरान शरीफ को पढ़ने वाला कारी सही तौर पर पढ़ सके। और कलिमात के नीचे तलफ़ुज़ का तरीका भी लिखा गया है। वो तमाम कलिमात जिनमें अलिफ नहीं पढ़ा जाता, वो तमाम कलिमात ये अलिफ़ यहाँ पर दिए गए हैं, पूरे सफ़े में वो तमाम कलिमात दिए गए हैं जिनमें अलिफ नहीं पढ़ा जाता। मैं आपको दो मिसालें आप हजरात के सामने लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको तमाम मिसालें इंशाअल्लाह पढ़कर सुनाऊंगा। पहली मिसाल है अफ़इम्माता, अफ़इम्माता, ये देखिए कुरान शरीफ में आई है, ये कुरान शरीफ में ये अलामत है। ये सूरह आल इमरान की आयत मुबारक का एक टुकड़ा है। ये पारे 4 आयत नंबर 144 में ये कुरान मजीद में ये वर्ड आया है, ये हर्फ आया है। आप इसे खोल कर भी जायजा दे, कुरान शरीफ की पारे 4 खोल के आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। इसको पढ़ना कैसा है, अलिफ के बगैर पढ़ना है, इसको इस तरह पढ़ना है, अफा इम्माता, अफा इम्माता। यहां पर अलिफ है, हम यहां पर अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं, अफ़इम्माता पढ़ रहे हैं। अगर यहां पर रुके रहे हैं, अगर कोई शब्द यहां पर रुक जाए तो फिर ये अलिफ पढ़ा जाएगा। अफा बोल के अगर वफ़ करें तो ये अलिफ पढ़ा जाएगा, वरना मिलाने की सूरत में अफ़इम्माता अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। देखें यहां पर आप ओ की अलामत पाई जा रही है, वो यहां पर आया है। इसी तरीके से है कुरान मजीद में लअन्तुम अशद्दु, ला अंतुम अशद्दु ला अंतुम अशद्दु। अब देखें यहां पर लाम के बाद अलिफ आया है, अलिफ पर जो है सो आपको ये जीरो की अलामत, ओ की अलामत आई, तो ये अलिफ नहीं पढ़ेंगे। तो इसको हम कैसा लिखेंगे,
कैसा पढ़ेंगे हम इसको ऐसा पढ़ेंगे, लअंतुम बगैर अलिफ के पढ़ेंगे हम, लअंतुम अशद्दु, अशद्दु इस तरह पढ़ेंगे हम, ला इस तरह हम पढ़ेंगे, लअंतुम अशद्दु इस तरह हम पढ़ेंगे। देखो देखिए यहां पर लाम अलिफ जबर ला है, लेकिन यहां लअंतुम एक अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे, लअंतुम अशद्दु। तो वो तमाम कलिमात जिनमें अलिफ के ऊपर ओ या फिर ऐसा काट कूट की अलामत अगर लिखी जाए तो वो कलिमात नहीं पढ़े जाते कुरान शरीफ में। पूरे कलिमात मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। अफ़इम्माता लइलल्लाहि अन तबूअ मिन नबई मलइही वलऔज़अू मलइही, यहां पर भी मलइही आया है, यहां पर भी मलइही आया है। ये मलइही सूरतुल आराफ में आया है पारे नंबर 9, और ये मलइही जो आया है सूरह यूनुस में आया है पारे नंबर 11। यानी मौलाना अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने वो तमाम कलिमात जिनमें अलीफ लिखा हुआ है, पूरे कलिमात को कुरान मजीद के पूरे कलिमात जिनमें अलीफ नहीं पढ़ा जाता, अपने इस सबक नंबर 38 में आप लिख चुके हैं, ताकि पढ़ने वाले बच्चे यहीं पर अलिफ को ना पढ़ें। और जब कुरान शरीफ में किसी जगह अगर छपवाने में तबाअत में ये अलामत, ये दो अलामत ओ और काटकूट की अलामत छूट भी जाए तो कारी पढ़ने वाला बच्चा यहीं पर प्रैक्टिस कर ले, और कभी ये अलामत छूट भी जाए छपवाने में तबाअत में तो बिल्कुल सही पढ़ सके, इसकी मशक कराई जा रही है। मलइहिम इन्न समूद लिततलुआ लन नदउआ लिशैइन लाकिन्न अफ़इन मित्ता समूद लअज़बहन्नहु। देखिए लअज़बहन्नहु में अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं हम, लअज़बहन्नहु समूद लियरबुआ फी में वो के बाद जो अलिफ है हम अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं। अगर इस पर रुक गए, खारी पढ़ते पढ़ते सांस तोड़ गई या आवाज खत्म हो गई, तो फिर अगर वफ करें तो लियरबुआ बोल के अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे। अगर मिलाकर पढ़ रहे हैं तो फिर अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। लियरबुआ फी लइलल जहीमी लियबलुआ नबलुआ बिसलिस्मु। तो नाज़रीन इकराम इस मिसाल को गौर से देखें, ये कुरान मजीद में आई है बिसलिस्मु। अक्सर बच्चे इसको पढ़ने में गलती करते हैं, बिसल इस्मु पढ़ते हैं, बिसल इस्मु पढ़ते हैं। जो यहाँ पर जेर आया है ये लाम का जेर है, अलिफ का जेर नहीं है, बल्कि अलिफ को हमें नहीं पढ़ना है। खासकर इस मिसाल को गौर करें। ये पारा नंबर सूरतुल हुजरात पारा नंबर 26 है, आयत नंबर 11 है। बिसलिस्मु, बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ने में अक्सर गलती करते हैं। तो यहाँ पर जो अलिफ आया है, ये अलिफ के ऊपर बहुत सारे बच्चे जेर समझते हैं, बल्कि अलिफ को नहीं पढ़ना है, बल्कि लाम के नीचे जेर आया है। बिसलिस्मु समूदा लअंतुम अशद्दु सलासिला क़वारीरा। अगर इसमें रुकेंगे तो क़वारीरा वक़्फ़ करेंगे, क़वारीरा। तो यहां पर भी अलिफ नहीं पड़ी। ये दो क़वारीरा, ये सूरतुल दहर में ये दो एक के बाद एक हर्फ आए हैं। तो दूसरा जो क़वारीरा है, पहला जो क़वारीरा है यहां पर हम वफ़ करेंगे तो क़वारीरा बोल के वफ़ करेंगे। दूसरे पर हम जो क़वारीरा पर वफ़ कर रहे हैं यहां पर इसको जज़म देंगे, क़वारीर पढ़ेंगे। और कि यहां पर यह बात बतलाई गई है कि हर वो और या जिस पर कोई हरकत या जज़म ना हो वो नहीं पढ़े जाते। जैसे मिसाल के तौर पर उलुल फज़ली, उलुल फज़ली, उलुल फज़ली, उलिल कुर्बा, उलिल कुर्बा। तो अजीज तलबा यहां पर आप देखें हर वो और या, ये वो के ऊपर कुछ भी नहीं है, जज़म नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम ये वो को नहीं पढ़ेंगे। उलुल फज़ली क्या पढ़ेंगे हम इसको, उलुल फज़ली। इसी तरीके से उलिल कुर्बा, यहां पर देखिए हम वो को नहीं पढ़ रहे इसलिए कि वो के ऊपर कुछ भी नहीं आया, जज़म नहीं आया, इसलिए हम वो को नहीं पढ़ रहे। इसी तरीके से या के ऊपर भी कुछ भी नहीं है, तो लाम को जो है सो हम ये लाम से मिलाकर पढ़ रहे हैं, उलिल कुर्बा। तो यहां पर ये बात बतला रहे हैं नोट में, हर वो और या जिस पर कोई हरकत ना हो, यहां पर जबर भी नहीं है, जेर भी नहीं है, पेश भी नहीं है, ना वो पर है ना या पर है ना ये वो पर है। तो हम वो और हर वो और या जिस पर कोई जबर
ہر جزم نہ ہو تو وہ لکھتے ہیں مگر پڑھتے نہیں. اسی طریقے سے اولو الفضل اولی القربا یہدی اللہ، یہدی اللہ میں دیکھیں اب یا لکھ رہے ہیں، دال کو لام سے ملا رہے ہیں، اللہ کے لام سے پہلے زیر آ گیا، لام جلالہ کا قاعدہ ہے تو یہاں پر لام کو باریک پڑھیں گے یہدی اللہ. اور ایک یہاں پر یہ قاعدہ بتلا رہے ہیں، یہ جو ہے سو را کو موٹا پڑھنے اور را کو باریک پڑھنے کا تیسرا قاعدہ اور چوتھا، را کو باریک پڑھنے کا تیسرا اور چوتھا قاعدہ، یہ قاعدے یہاں پر بتلا رہے ہیں. قاعدہ سن لیجئے، را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش یا را ساکنہ سے پہلے یا کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو وقفاً موٹا پڑھیں گے. یعنی مثال کے طور پر یہ ہے سقر، یہاں پر آیت آ گئی تو ہم جب اس کو کیا بات بتلا رہے ہیں، را کا تیسرا قاعدہ ہے را ساکنہ سے پہلے زبر آ گیا تو یہاں پر رکنا ہے تو ہم اس کو کیسا پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے سقر. اسی طریقے سے را ساکنہ سے پہلے پیش آ گیا اشہر کی آیت ہے تو یہاں را ساکنہ سے پہلے پیش آ گیا تو ہم اس کو کیسا پڑھیں گے، سقر، را کو موٹا پڑھیں گے وقفاً، اشہر، را کو موٹا پڑھیں گے. اور ایک بات یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں، را ساکنہ سے پہلے زیر یا ساکنہ یا کوئی حرف ساکین ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را کو وقفاً باریک پڑھیں گے. عاقر، عاقرن ہے، ہاں یہاں پر آپ رک گئے تو ہم اسے پڑھیں گے عاقر، آخر ہم پڑھیں گے تو یہاں پر کیا آ گیا، یہ را ساکنہ سے پہلے زیر آ گیا تو را کو باریک پڑھیں گے. اسی طریقے سے ولا نصیر، ولا نصیر، تو یہاں یہ دینے کا قاعدہ مطلب یہ ہے کہ بہت سارے بچے پڑھتے وقت یہاں پر را کو موٹا پڑھتے ہیں ولا نصیر، بلکہ ولا نصیر، را کو باریک پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ را ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ یا کوئی حرف ساکنہ اور اس سے پہلے یہاں پر زیر آیا ہے، را ساکنہ ہے اس سے پہلے یا لینا ہے اس سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. تو اسی طریقے سے خیر ہے، خیر ہے، خیر میں آپ دیکھیں یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں، یہ را کو پڑھنے کا تیسرا اور چوتھا قاعدہ بتلا رہے ہیں، لیکن یہ بتلانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہاں پر را کو جب وقف کریں گے تو را کو باریک پڑھیں گے خیر. تو یہ وہی بتلا رہے ہیں عاقر، خیر، بصیر، ولا نصیر، فاصبر، حجر، المدثر، فطہر، یہ تمام کلمات اگر را ساکنہ سے پہلے زیر ہے وقفاً را کو باریک پڑھیں گے، را ساکنہ سے پہلے زبر ہے وقفاً را کے اوپر سکون ہے اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے. تو عزیز طلبہ اور طالبات، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو قاعدے آج کے اس سبق میں ویڈیو میں بتلائے، الف مقصورہ کا قاعدہ اور وہ کلمات جن میں الف پڑھا نہیں جاتا، یہ دو قاعدے میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بتلائے. اس قاعدے کو، یہ یسن القرآن کو، تجوید کو کھولیں، اپنے سامنے رکھیں اور اس ویڈیو کو آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل قاعدہ یہ سبق میں آ جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، مجھے اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو، ہمارے مرد و خواتین کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.